Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 10. In the previous lecture, we have studied analysis of method of least square, detrending, and we read about the analyzing the seasonal variation. Now we will start in today's lecture the different methods of analyzing the seasonal variations. We will study ratio to moving average method, ratio to trend method, and then link relative method. Ratio to moving average method. There are mainly 4-5 steps that is included in ratio to moving average method. In the first step, this method is most frequently used for the computation of seasonal index numbers. This is very important that the ratio to moving average method is used for the computation of seasonal index numbers or seasonal indices. ठीक है? The first step is to eliminate the trend component. क्या करता है first step? Eliminate the trend component. To this end, divide the original observation for each month or quarter by the corresponding 12-month or 4-quartered centered moving average and express the result as a percentage. Means we have to find 4-quarter centered moving average in the first step. Compute the seasonal relative for each month or quarter. Then we will compute seasonal relative. It is worthwhile to note that each monthly or quarterly value is assumed to consist of the product of the effects of T. T means trend, C cyclical, S seasonal and I irregular components. वो क्या कह रहे हैं कि it is assumed to consist of the product of the effects of these 4 components and each moving average is a measure of bind effect of trend and cyclical components, that is T multiplied by C. Then हम क्या करेंगे? Divide the original data by the corresponding moving averages and then multiply by 100 and estimate of the effects of seasonal and irregular components combined is obtained. That is, original data जो हमारे पास होगा उसको divided by moving averages multiplied by 100. This is called seasonal relatives. अभी जो पीछे हमने मेथड पढ़ा था उसमें भी seasonal relative को इसी तरह से डिफाइन किया गया था. अब ये हम लोगों ने जो 4 कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं उन 4 कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको लिख दिया गया है. डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज में ये ट्रेंड और साइक्लिकल है वेरिएशन. नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ द इररेगुलर कंपोनेंट in order to obtain seasonal indices. अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इरेगुलर जो कंपोनेंट का इफेक्ट है उसको डिलीट करना है. ये देखें कि जब हम इनको इस तरह से सीजनल रिलेटिव्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास सीजनल और इरेगुलर वेरिएशंस आ रही होती हैं. S shows the seasonal and I shows the irregular. ठीक है, तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे उसमें हम फिर इरेगुलर कंपोनेंट्स को खत्म करेंगे. टू अचीव दिस एंड अरेंज द सीजनल रिलेटिव्स बाय मंथ और क्वार्टर्स एंड फाइंड द मंथली और क्वार्टरली एवरेजेस यूजिंग आइदर द मीन और मीडियन. बिल्कुल उसी तरह से हम ये स्टेप करेंगे कि हम लोगों ने अब मीन या मीडियन को फाइंड आउट करते हुए सीजनल रिलेटिव जो है वो अरेंज करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन फाइंड द मंथली और क्वार्टरली एवरेजेस. मीन इज टू बी यूज्ड. कंप्यूट अ मॉडिफाइड मीन by discarding the usually large or small seasonal relative under each month or quarter so that the average is not distorted. As we know that mean is affected by the large and small values. These monthly or quarterly averages do not average 200. Then adjust them by multiplying each median or modifies mean estimate of seasonal index by the correction factor that will make average of all the indices equal 100. ठीक है जी, ये वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस मेथड को यूज करने में हम इस्तेमाल करेंगे. जब हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सारी चीजें पढ़ने में इतनी डिफिकल्ट आपको लग रही हैं, ये सॉल्व करने में इतनी डिफिकल्ट नहीं है. स्टूडेंट एक एग्जांपल कर लेते हैं. कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस फॉर द 4 क्वार्टर्स बाय द मेथड ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेजेस. देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टेप पढ़ा था उसमें ये था 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट हमने करनी है. ठीक है,
उसके लिए जो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। 9049 के 4 क्वार्टर्स हैं, देन 9050 एंड देन 9051। ये इस तरह से डाटा हमें गिवन था। ये रोज की फॉर्म में है, ये 9049 है और 50 और 9051 के लिए। इसको अगर हम 9049 को मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूं तो इसके नीचे ही इसके आएंगे ना, ये 1 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स। ठीक है, जो क्वार्टर्स में वैल्यूज हैं वो भी बिल्कुल इसके सामने हम लिखेंगे। यानी फर्स्ट में है हमारी 105, 77, 68 एंड देन 95। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ये डाटा लिखने का एक तरीका है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैंने काम किया है वो इसी तरह से किया हुआ है। ठीक है, अब इसके भी 4 इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे और नेक्स्ट के भी लिख रहे हैं। मीन्स ये कि मैंने रोज को अब किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया है, कॉलम्स में। रोज चेंज इनटू कॉलम्स। डेटा को इस फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है ताकि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। देखें अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 क्वार्टर मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। जो क्वार्टर है एक हमारे पास, ये एक क्वार्टर है, इसका मूविंग टोटल हमने फाइंड आउट करना है। तो इस सब को एड अप कर लेंगे, सब वैल्यूज को, और उसका टोटल इसके मिडल में लिखेंगे। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 345। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब इन 4 को लेके यहाँ पे करेंगे और इसका कहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 347। इसी तरह से आप नेक्स्ट लेते जाएं और इनको लिखते जाएं। 353, 359, 370, 380। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको लास्ट लेक्चर्स में करवा दिया है कि किस तरह से हम 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। ये वही लास्ट एग्जांपल वाले ही स्टेप्स हैं सारे, फिर भी मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका हम 4 क्वार्टर मूविंग टोटल किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। जो लास्ट वाला है ये किन 3 4 का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4। आपको ये पता है कि जो हम हमेशा इन 2 के मिडल में ही लिखेंगे, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल अब हमने फाइंड आउट करना है। अब ऐसा करें कि सेंटर्ड इन दोनों का फाइंड आउट करें और यहाँ पे लिख दें। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 692। यानी हमने क्या किया, 345 प्लस कर दिया 347, सही। अब हम क्या करेंगे, 347 और इसको एड अप करके बिल्कुल इधर सेंटर में लिख लेंगे। हमारे पास 700 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे और इनके सेंटर में लिख लेंगे 712। जब इन दोनों को करेंगे तो इनके सेंटर में लिखेंगे 729, 750। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनको लिखने का भी एक पैटर्न है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो इसी वजह से ये सही इसकी पोजीशन आती है कि हम इनको सही तौर पे लिख रहे होते हैं जहां पे ये वैल्यू आती है, सही। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है कि 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस हमने फाइंड आउट करनी है। आपको ये पता है कि उसके लिए हमने क्या करना है कि इस वाले कॉलम को डिवाइड कर देना है। अगर हम देखें कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम। ये कॉलम 4 को हमने किससे डिवाइड करना है, 1/8 के साथ हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। या डिवाइडेड बाय 8 कर लें या 1/8 लिख सकते। यहाँ से भी ये वैल्यू मिसिंग है, यहाँ से ये वैल्यू मिसिंग है, बिल्कुल इसके सामने लिखें डिवाइडेड बाय 8 करते हुए। यानी 692 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 86.5। इसी तरह से 700 डिवाइडेड बाय 8, 712 डिवाइडेड बाय 8, ये अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप फाइंड आउट करते जाएं। And 100.5, लास्ट इज 102.8, ठीक है।
और इस दो वैल्यूज के लिए भी हमारे पास नहीं आएगा। ये 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? सीजनल रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। सीजनल रिलेटिव्स आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा है ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल वैल्यूज भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेंड, जो कि ये हमने ट्रेंड और एवरेज, ये जो अभी हमने ये मूविंग एवरेज फाइंड आउट की है वो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? SI आ जाएंगी अब हमारे पास, क्योंकि अभी अभी हमने ये देखें, मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रही हूं, ओरिजिनल डेटा डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू सीजनल रिलेटिव्स, दैट कम्स आउट SI। जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जो पहला हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कौन सी वैल्यू है इसके सामने, यानी हम करेंगे 68 डिवाइडेड बाय 86.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 78.6। हम इस वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू वैल्यूज को तो हम इन्वॉल्व नहीं करते। मूविंग एवरेज का ये मेथड आपको बताया था, क्योंकि ये सेंटर्ड है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज है, इसलिए ना फर्स्ट टू को करेंगे ना लास्ट टू को करेंगे। थर्ड वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। थर्ड के बाद ही प्रॉपरली जो है वो मूविंग्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं डाटा में। इसी तरह से आप क्या करेंगे? आप करेंगे 95 डिवाइडेड बाय करेंगे 87.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 108.6। ठीक, अब इन सबको करते जाएं, 120.2 91.1 78.9 109.3 1116.4 और लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है 96.3 आएगी लास्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर दी है? सीजनल रिलेटिव्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि 90 49 जो डेटा अभी सीजनल रिलेटिव्स हमने फाइंड आउट किए हैं, यानी सीजनल रिलेटिव्स हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट वैल्यू में कुछ नहीं था, ना सेकंड में था, उसके बाद से स्टार्ट हो रहा था हमारे पास डेटा। 90 49 के लिए 78.6 108.6 120.6 91.1 78.9 109.3 96.3। ठीक है जी, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सम अप करें इनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 236.6। इसी तरह इनको करें तो 187.4 157.5 217.9। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने मीन फाइंड आउट कर से के 236.6 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर लेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 1118.30। इसी तरह से 187.4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 93.70 157.5। जब भी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो 2 है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। और वैसे भी हमने सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट की है, मीन्स के 2 आएगा डिवाइजर में। $108.95। अब इन सबको टोटल कर लें, सब एवरेजेस को टोटल कर लें, यानी एवरेज टोटल कर लें।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 399.7. ठीक है, द सम ऑफ दीज मीन परसेंटेजेस is 399.7 which is close to the desired 400. वैसे हमारे पास जो desired था वो क्या था 400. This is close to 400. सही है. So that no adjustment is necessary. Hence the desired seasonal indices क्या होंगे? ये सारे ही हमारे डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस हैं. ठीक है, यानी कि हमारी फर्स्ट क्वार्टर में 118.30, 93.70, 78.75 एंड इन द फोर्थ क्वार्टर 108.95. These are the seasonal indices by using the method of 4-quarter centered moving averages. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक रेशियो टू ट्रेंड मेथड. आइए अब इस मेथड को देख लेते हैं. इन दिस मेथड द ट्रेंड वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच टाइम पीरियड बाय फिटिंग अ लीस्ट स्क्वायर्स ट्रेंड लाइन आइदर टू द ऑब्जर्व टाइम सीरीज डेटा और टू द एनुअल परसेंटेजेस. द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इज द सेम एज दैट ऑफ द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड. स्टूडेंट, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा है ये रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड पढ़ा है. As seasonal index by it includes cyclical and irregular variations जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं. स्टूडेंट्स, आइए अब एक एग्जांपल से रेशियो टू ट्रेंड मेथड को समझ लेते हैं. हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं बाय दिस मेथड. वी हैव टू फाइंड द सीजनल इंडिसेस बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड. ठीक है जी, डेटा हमें ईयर्स में लेकिन क्वार्टर्स की फॉर्म में गिवन है फ्रॉम 1961 टू 1960. यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से लिया है कि जो डेटा में वैल्यूज गिवन थी उसको हमने वाई वैल्यूज कह दिया है. आपको पता है कि बाय द मेथड ऑफ लीस्ट ईयर से हम ट्रेंड वैल्यूज किस तरह से कंप्यूट करते हैं. एक हमारे पास इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो इस तरह से होती है कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है. ठीक है जी, और जब हम y एस्टिमेटेड y हैट लिखते हैं मीन a भी एस्टिमेटेड होता है प्लस b भी एस्टिमेटेड होता है और x की वैल्यूज पुट कर करके हम इस तरह क्या ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हैं. अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x वैल्यूज जनरेट करनी है. y हमारे पास टाइम भी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. x की वैल्यूज हमने जनरेट कर लेनी है. हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 16 है. यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस दरमियान में हमने 0 लिख लिया. 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन हम चले गए और इसी तरह से -1, -3, -5 अप टू सो ऑन चले गए. ये एक तरीका है जिससे हम x की वैल्यूज को खुद से जनरेट कर लेते हैं. यहाँ x की वैल्यूज को इनको कहते हैं कि हम लोगों ने 2 मिडल क्वार्टर्स के मिड में ये 0 की वैल्यू आई है और इस तरह से हमने इसके नीचे और ऊपर जो है वो 1 वैल्यू छोड़ के यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और इसी तरह माइनस के साथ इधर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लेंगे. अब हम एक्स स्क्वायर इसका लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर में 15 को स्क्वायर करें माइनस हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्क्वायर में हमेशा जाके वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. और इसी तरह से 13 का स्क्वायर करें, 11 का करें 121, 81, 49, 25, 9, 1, 0 और फिर 1, 9, 25 और 7 का करेंगे 49, 81, 121, 169 एंड 225. एक्स वाई करें यानी इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगी -18, 30, -16, 25, 1298, 1053, -833. जब माइनस इस प्लस
वाली वैल्यू की, क्योंकि ये प्लस है ना इसके साथ, ऑब्वियस है इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही आएगा। -570 -342 -109 और उसके बाद आ जाएगा 105 297 465 623 774 880 1079 1260। अब हमने इस ट्रेंड वैल्यू में ये ए और बी की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी हुई है इसको फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास वही स्ट्रेट लाइन है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि हम रिग्रेशन में भी इस लाइन को पढ़ते हैं। इसकी टू नॉर्मल इक्वेशंस बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सम करेंगे, इसके साथ सम अप्लाई करेंगे। सम ऑफ वाई टी इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स। मैंने लास्ट में लेक्चर में आपको ये बता दिया था। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्स, इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसकी टू नॉर्मल इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, अगर देखें आप पीछे स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पे जो सम ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि कुछ 0 के बिलो कुछ वैल्यूज हैं और कुछ आप हैं, वो सिमिलर वैल्यूज हैं विद द नेगेटिव साइन। इसका मतलब है ये आपस में कैंसिल होकर सम ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। पुट इन वन इक्वेशन में जब हम इसको रखेंगे तो सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी 0 इक्वल्स टू एन ए सम ऑफ y, यानी a इक्वल्स टू सम ऑफ y ओवर n हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे कि पुट कर दें सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, सम ऑफ एक्स वाई, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई टी भी लिख सकते हैं। t इज ऑब्वियस, a 0 प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास b क्या निकल आया, सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ y को डिवाइडेड बाय कर देंगे n के साथ, और y का क्या सम था हमारे पास, वो था 1657 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 103.56। ठीक है जी, इसी तरह आप b को कर लें, सम ऑफ एक्स वाई क्या था हमारे पास, वो था -22177 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1360। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b -1.60। ठीक है जी, ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट कर दें, यहां पे पुट कर दें और x की हर वैल्यू के लिए y हैट t फाइंड आउट कर लें। ठीक है, यानी अब x जो है वो पहले -15 होगा, इसके लिए y हैट t1 के लिए सपोज करें, t1 इसको कह लें, और जब हम यानी 103.56 -1.60 मल्टीप्लाई बाय -15 करके इसको सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू 127.56। इसी तरह से इसको करते जाएं और ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट कर लें। ये मैंने सारा लेक्चर जो है डिटेल से लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था इस टॉपिक के बारे में, और आपको इसकी प्रैक्टिस करके इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जितना भी हमने काम करना है, अगर आपको पिछला काम आता होगा तो ही आप नेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करके देखें।
82.76 and then 79.56. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। देखिए स्टूडेंट, सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 1.6 आया है, 1.60 जो आया है हमारे पास b की वैल्यू को, अगर हम 1.60 को डिवाइडेड बाय as the origin at the middle of the fourth quartile 1962 and first quartile 1963 and x is measured in half quartile units। ठीक है जी। The trend values are computed by substituting the values of x in the least square equation and they appear in the last column, जैसे कि हमने लास्ट कॉलम में इसको बता दिया है। Next we divide each observation in the original data by the corresponding trend value and multiply it by 100। देखिए स्टूडेंट, जो सीजनल इंडिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं उनके लिए हम पहले सीजनल रिलेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सीजनल रिलेटिव्स क्या होते हैं हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। यानी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1961 के लिए 122 डिवाइडेड बाय ट्रेंड में जो वैल्यू आई थी वो 127.56 आई थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 95.64। ठीक है, जिस तरह के सीजनल रिलेटिव्स फाइंड आउट किए जाते हैं अभी अभी लास्ट मेथड में भी मैंने आपको ये सिखाया है। देखिए, हम कोई सा भी मेथड पढ़ लें लेकिन जो सीजनल रिलेटिव फाइंड आउट करने का तरीका है वो एक ही रहेगा कि उसमें हम ओरिजिनल वैल्यूज को डिवाइड कर रहे होंगे अपनी ट्रेंड की वैल्यू से। अब ट्रेंड जो है वो जब हमने मूविंग एवरेज वाला मेथड पढ़ा है, यानी हमने जब ये पढ़ा था कि हमने एवरेज मेथड से हमने ट्रेंड कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे, तो उसमें हमने उस वाले कॉलम को डिवाइड कर दिया था ओरिजिनल वाले से। ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यूज को एवरेजेस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो है ट्रेंड मेथड पढ़ रहे हैं। ट्रेंड मेथड में ट्रेंड कंपोनेंट्स को या ट्रेंड जो हमारे पास निकला है उनको डिवाइड करेंगे। सही है, ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। और अब इधर देखें, आप इसको खुद करके देखें, सारी वैल्यूज आपके पास यही आनी चाहिए। यानी 1961 के लिए जो हमारे पास ट्रेंड निकला है वो क्या निकला है, अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया ना, ये देखें लास्ट में, ये देखें, ये देखें 1961 में क्या निकला है 127.56। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद 61 के सेकंड के लिए 124.36, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही इनको डिवाइड करेंगे अपनी, यानी 125 डिवाइडेड बाय 124.36
118 divided by 121.16 and up to so on. अब इधर क्या फर्क है, इधर सिर्फ ये फर्क है कि मैं जो हूं इसको उसमें लिखती जा रही हूं, कॉलम्स को रोज की फॉर्म में लिख रही हूं. फोर्थ जो हमारे पास क्वार्टर है उसकी वैल्यूज को भी हम साथ ही लिख देते हैं. नाइन्टी 96.36, 1964 के लिए देखें 96.46, 93.07, 100.29 एंड 105.58. ठीक है, इन सबको टोटल करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 398.77, 302.94, 295.00 एंड 404.78. ठीक है जी, टोटल आ गया. अब इसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली, यानी इसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ और इधर लिख लिया, तो इसकी एवरेज में क्या आएगा 99.69, 100.98, 98.33 एंड 101.20. ठीक है जी. अब हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं. किस तरह से करना है, जब हम इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इसका एवरेजेस का टोटल फाइंड आउट करें तो जो एवरेजेस का टोटल हमारे पास आएगा वो 400.20 आ रहा है. ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है वो अबव आ रही है हमारे पास. अगर हमारे पास देखें 105.20 और 93.07 जो है वो एक्सट्रीम आ रही हैं ऑब्जर्वेशंस. ये 2 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास एक्सट्रीम है, एक ये और एक 93, यहाँ पे है 93.07. ठीक है, अगर हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को निकाल के टोटल करें तो हमारे पास जो सीजनल इंडिसेस आ जाएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे. ये हमारे पास 400 आ जाएगा. मीन्स के जब हमने मीन आगे हम निकालते थे और मीन को ही हम कह देते थे कि ये हमारे सीजनल इंडिसेस हैं, जबकि हमारा एग्जैक्टली 4 क्वार्टर्स हैं तो 400 के इक्वल आता था. यहाँ थोड़ा सा कम उससे होता था तो हम कहते थे कि इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इधर देखें कि 400 से अबव चला गया 0.20, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसको एडजस्टेड करने के लिए वी डिस्कार्ड दीज एक्सट्रीम रिलेटिव्स बिफोर कंप्यूटिंग टोटल्स. ठीक है, टोटल्स को कंप्यूट करने से पहले, एवरेजेस को फाइंड आउट करने से पहले ये जो दो हमारे पास एक्सट्रीम हैं, यानी ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, इन दोनों को निकाल दिया डाटा में से और उसके बाद हम टोटल करके हम अपना सीजनल इंडिसेस इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे.